Namaste and hello everyone. My name is Samita Banka. I am lecturer at Chemical Engineering at Sri KJ Polytechnic, Bharuch. You are going through Chemical Process Technology lecture series, specially designed for semester 3 students of GTU affiliated colleges, institutes and curriculum. This is the English version of this lecture series. We are doing this lecture series in English, Hindi and Gujarati. This particular lecture is on chapter number 4 of the curriculum that says polymer. Let us start with manufacturing process of polyethylene by Philip process. Now polyethylene are industrially classified under four categories: uh, low density polythene, medium density polythene, high density polythene and ultra high density polythene. So by Phillips process, we usually produce a high density polythene. In this process, while polymerizing ethylene, we use chromium based heterogeneous catalyst. Heterogeneous means we use solid catalyst, whereas ethylene is in our liquid state. The key strength of the process lies in its simplicity. The process is very simple, very cost effective, and has ability to produce high quality of HDPE. तो सबसे पहले हम पॉलीथीन की बात करते हैं जिसे फिलिप्स प्रोसेस से हम बनाएंगे आज। पॉलीथिलीन को इंडस्ट्री में चार भागों में बांटा जाता है उनकी डेंसिटी के हिसाब से: लो डेंसिटी, मीडियम डेंसिटी, हाई डेंसिटी पॉलीथीन और अल्ट्रा हाई डेंसिटी पॉलीथीन। फिलिप्स प्रोसेस से हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाया जाता है जिसके पॉलीमराइजेशन के दौरान क्रोमियम को एक प्रेरक के रूप में हम यूज़ करते हैं। हेट्रोजीनियस इसलिए क्योंकि क्रोमियम जो है वो सॉलिड स्टेट में होता है और बाकी का रिएक्शन मिक्सचर जो है वो लिक्विड स्टेट में फेज में होता है। इस प्रोसेस की खास बात ये है कि ये सिंपल है, आसान है, कम खर्च में हो जाता है और उच्चतम क्वालिटी का हमें HDPE इसमें मिल सकता है। The raw materials required include monomer ethylene in gaseous form, which we usually get from steam cracking of hydrocarbons like naphtha and ethene. सॉल्वेंट आइसोब्यूटेन या हेक्सेन डालने में आता है। कैटलिस्ट के रूप में क्रोमियम ऑक्साइड जिसे सिलिका के ऊपर सपोर्ट करते हैं। सो इन फॉर्म वी यूज क्रोमियम ऑक्साइड CrO3 on porous silica as support for this process. Moving on, catalyst preparation and activation. As we have seen, we use chromium oxide on porous silica, but we need to prepare it. We need to activate chromium oxide. Okay, and to do that, uh, the chromium content over silica is almost 0.1 to 1%. Rest is silica. This catalyst is calcined, that is, it is heated extremely high in presence of air at 500 to 800 degrees Celsius. During this calcination, the oxidation state of chromium changes, which means we make the chromium ion activated for our reaction, and the silica support provides high surface area and porosity, which increases the adsorption of ethylene and hence increases the rate of reaction. जिस प्रेरक की हमने बात की है उत्प्रेरक की क्रोमियम की जिसे हम सिलिका के साथ डालते हैं, तो इस क्रोमियम सिलिका कैटलिस्ट में क्रोमियम की मात्रा 0.1 से 1% वेट की होती है मात्र। और इस कैटलिस्ट स्ट्रक्चर को जिसमें कि क्रोमियम ऑक्साइड और सिलिका है उसे हम 500 से 800 डिग्री सेल्सियस पर हवा के प्रेजेंस में भट्टी में डालते हैं, उसे कैल्सिन करते हैं, कठोर बनाते हैं। इस कैल्सिनेशन के टाइम पे जो क्रोमियम है वो एक्टिवेट हो जाता है और उसकी एक्टिवेशन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 से घट के +3 पे हो जाती है।
जिस सिलिका का हम उपयोग कर रहे हैं उस सिलिका की वजह से हमें ज़्यादा सरफेस एरिया मिलता है, छिद्रता बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इथिलीन का एड्जॉर्प्शन बढ़ता है और एड्जॉर्प्शन बढ़ने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है. Let us see some chemical reactions involved. So first one is catalyst activation, which we talked about, that is chromium oxide on silica heated in air, that is calcination was done. The oxidation state of chromium converted from 6 plus to 3 plus, and oxygen is liberated. Then this activated catalyst in is reacts with ethylene and breaks the double bond, reacts with ethylene and breaks this double bond to form a single bond chain. You can see that in last there is a dot over here, which means this carbon is not having all the 4 bonds. It has one vacancy still left. This vacancy will help in further reaction propagation. So here you can see that chromium and this ethylated chromium with one ion over here reacts with another molecule of ethylene, and again this breaks chain, and this ion, this vacant ion that transfers to the last, and this process keeps on going on until we have a termination step in which this long chain of chromium ethylene chromium reacts with ethylene in presence of hydrogen to give polyethylene, and again this chromium ion, and this chromium ion can now auto catalyze the entire process, and another molecule of another polymer of polyethylene will be produced. तो प्रक्रिया देख लेते हैं. सबसे पहले कैटलिस्ट एक्टिवेशन की, जिसकी अभी हमने बात की. क्रोमियम ऑक्साइड जो कि सिलिका के ऊपर आधारित है, उसे हम कैल्सिन कर रहे हैं उष्मा और हवा के प्रेजेंस में, जिससे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से +3 में चेंज हो जा रहा है. आगे रिएक्शन का इनिशिएशन हो रहा है, यानी कि रिएक्शन शुरू हो रहा है. जो ये एक्टिवेटेड क्रोमियम है उसको इथिलीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, और उसकी वजह से ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है और इथिलीन आयन बन रहा है. यही इथिलीन आयन जो यहाँ ऊपर आप बिंदु देख रहे हैं, इसका मतलब है इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए, लेकिन मात्र 3 आप देख सकते हैं, एक यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन के साथ, यानी एक अभी बाकी है. ये जो एक बॉन्ड अभी बाकी है, ये बॉन्ड अगले इथिलीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और उस इथिलीन मॉलिक्यूल के आखिरी हाइड्रोजन पे एक उसे जगह दे देगा. ये प्रक्रिया बार बार चलती रहेगी जब तक कि रिएक्शन को अंत ना करे. जब तक कि रिएक्शन को अंत ना करें. अंत करने के लिए इथिलीन के मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन के साथ इसी में डाला, हाइड्रोजनेशन किया जाता है. इस हाइड्रोजन की वजह से जो अंत में हमारे पास एक खाली मॉलिक्यूल था उसमें वो हाइड्रोजन आ जाता है. ओके, और बाकी का जो ये मॉलिक्यूल है ये क्रोमियम के साथ अलग हो जाता है, और इसे हम अगले रिएक्शन के लिए यूज कर सकते हैं. यदि ये सारे रिएक्शन आपको याद करने में, समझने में तकलीफ आ रही है, समय की कमी लगती है एग्जाम में, तो आप ये साधारण एक रिएक्शन NCH2 डबल बॉन्ड CH2 ब्रेक होके CH2 पॉलीथिलीन बनाता है, ये भी लिख सकते हैं. If in case of exam you don't remember all these reactions, or else you are short of time, then you can directly write this small reaction, reaction, which says that n molecules of ethylene will break down to form a polyethylene. This is the process flow diagram. This Phillips process was developed by Phillips Petroleum Company, USA. It uses either molybdenum oxide or chromium oxide. We have talked about chromium oxide. On alumina, or as we discussed right now, silica as catalyst. It produces HDPE. We have already discussed. HDPE produced has. Now, what are the qualities of HDPE polyethylene?
So they are rigid, strong, crystalline in structure, have high tensile strength, that they don't easily break, and their softening point is also high because they're high density. If it was a low density polythene, then its softening point is and tensile strength is low. So over here we'll see how the process begins. So first of all, the monomer is compressed, and because of this compression, all these gases, they are removed. Now monomer ethylene is also in gaseous phase, you can say vapor phase. So basically we are separating ethylene from other gases, and it is sent to this absorber as a solvent. We have already seen in the previous slide that Um, as a solvent, we use isobutane or hexane. So that solvent is being absorbed in this absorber. That is, ethylene absorbs this solvent, and then this entire mixture is pumped and then heated and then sent to this reactor. Usually in polymerization, we use a reactor called autoclave. Now we need to add catalyst. So catalyst from previous reaction cycle is regenerated and is sent to this catalyst hopper. The use of hopper is to break the catalyst into small pieces so that their surface area increases and they can be used in maximum capacity. So this reaction happens, and then the final product is sent to a cyclone separator. This cyclone separator removes monomer, unreacted monomer, which is again sent back to the reactor. Then the solvent is also removed, and that is sent to a fractionator, and the catalyst is removed from the bottom, as you can see, which is catalyst regeneration and goes. Now this solvent, that is the this catalyst and this reactor is then sent to cooler, where this polymer is cooled down. Again a solvent is added, polar solvent such as water or something is added, so that we can remove the solid polymer and clean the polymer solvent, and then this polymer is dried. So this is the process of polyethylene to be produced by Phillips process. एक बार हिंदी में समझ लेते हैं। पॉलीथिलीन जो है उसे फिलिप्स पेट्रोलियम कंपनी यूएसए ने डेवलप किया था। हमने क्रोमियम ऑक्साइड सिलिका में पढ़ा है, पर इसे मोलिब्डेनम ऑक्साइड के कैटलिस्ट के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है, और एल्यूमिना को हम सिलिका से रिप्लेस भी कर सकते हैं। ये प्रोसेस हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन बनाता है। एचडीपी प्रोड्यूस जो होता है, जो एचडीपी प्रोड्यूस होता है वो कड़क होता है, सॉलिड स्टेट में तो होता ही है, मजबूत होता है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, उसका सॉफ्टनिंग पॉइंट भी बहुत ऊंचा होता है। क्योंकि ये हाई डेंसिटी पॉलीमर है, इसलिए इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ और सॉफ्टनिंग पॉइंट हाई है। यदि ये लो डेंसिटी पॉलीमर होता है तो ये दोनों कम होते। प्रक्रिया समझ लेते हैं। तो हमने पढ़ा था हमारा मोनोमर इथिलीन, उसे कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करने के बाद फ्लैश में डालते हैं, जिससे कि जो गैसेस हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, जैसे ऑक्सीजन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, उसे हम बाहर निकाल सकें और केवल इथिलीन मॉलिक्यूल एब्जॉर्बर में जाए। उसके बाद इस एब्जॉर्बर में हम सॉल्वेंट डालेंगे एब्जॉर्ब करने के लिए। तो सॉल्वेंट के रूप में हम आइसोब्यूटेन या हेक्सेन का यूज़ करते हैं। और ये जो एब्जॉर्ब मिक्सचर है, रिएक्शन मिक्सचर बनता है हमारा, जिसे हम पंप करते हैं, हीटर में गर्म करते हैं, उसके बाद इस रिएक्टर में, जिसे हम ऑटोक्लेव बोलते हैं, उसमें डाल देते हैं। रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए हमने देखा था हमें कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। पिछले साइकिल में से जो कैटलिस्ट वापस लेते हैं, रिकवर करते हैं, उसे रीजनरेट करके हम यहाँ हॉपर में डालते हैं। हॉपर का काम है कि कैटलिस्ट को छोटे छोटे पीसेस में, एकदम पार्टिकल्स में डिवाइड कर देता है, जिससे कि कैटलिस्ट के सरफेस एरिया में इंक्रीज हो जाता है और कैटलिस्ट ज़्यादा इफेक्टिव रिएक्शन रेट्स देता है। रिएक्शन होने के बाद रिएक्शन मिक्सचर साइक्लोन में जाता है। इस साइक्लोन सेपरेटर में जो मोनोमर है अनरिएक्टेड, यानी कि इथिलीन है जो रिएक्ट नहीं हुआ है,
वो ऊपर से कलेक्ट कर लिया जाता है, जिससे हम वापस से फीड में डाल सकते हैं। जो हमारा कैटलिस्ट है वो बॉटम से कलेक्ट हो गया, जिसे कैटलिस्ट रीजनरेट करके वापस हॉपर में डाल दे रहे हैं। और जो हमारा सॉल्वेंट और प्रोडक्ट है वो एक सॉल्वेंट फ्रैक्शनेटर में जा रहा है, जिसमें से ये पॉलीमर और सॉल्वेंट अलग अलग कर दे रहे हैं। यहाँ नीचे देख सकते हैं कि जो कैटलिस्ट कवर किया है उसे ठंडा कर रहे हैं कूलर में, और फिर उसमें पोलर वॉश दे रहे हैं। पोलर सॉल्वेंट का वॉश यानी कि पानी या इस तरह से वॉश दे रहे हैं, जिससे कि जो अनरिएक्टेड मॉलिक्यूल्स मोनोमर्स है या कुछ इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस हो गए हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है पर वो पॉलीमर नहीं है, उनको हम अलग कर सके। और उसके बाद जो हमारे पास फाइनल सॉलिड पॉलीमर बचता है उसे हम ड्रायर में डाल देते हैं और अपने यूज़ के हिसाब से उसे कंटिन्यू करते हैं। आई होप ये प्रोसेस समझ में आ गई है। यदि इसमें कोई भी डाउट है तो आप दोबारा प्रोसेस समझ सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो, और नहीं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। मूविंग ऑन, लेट अस डिस्कस दिस प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। अभी जो किया उसे हम आगे और देखते हैं। तो I'll read out because I have almost explained everything. So ethylene feed is purified to remove water, oxygen, and carbon dioxide. The reason of removing them is that they poison the catalyst. Then this ethylene enters the reactor along with the catalyst. Ethylene and catalyst are suspended in hydrocarbon liquid such as isobutane. That is what we did with the absorption. Then polymer forms a suspension of fine particles. Okay, that is during the reaction. Temperature is 80 to 110 degrees Celsius and 20 to 45 bars. Polymerization occurs and HDPE forms a solid particle in the slurry. Slurry is passed to settler or flash tank to remove solvent or unreacted ethylene, जो हमने देखा water wash दिया गया है. And polymer is washed, dried and pelletized. Pelletized, they are converted into small pellets. एक बार पूरी प्रोसेस पढ़ लेती हूँ वापस से आपके लिए। इथिलीन जो कि फीड है हमारा, उसे पहले हम कंप्रेस करते हैं जिससे कि वाटर वेपर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें अलग कर सके। ये ज़रूरी है वरना हमारा कैटलिस्ट जो है वो नुकसान करेगा, वो प्रॉपर रिएक्शन हमें नहीं देगा। ये जब रिएक्टर में कैटलिस्ट के साथ इथिलीन जाता है उसको हम पहले हाइड्रोकार्बन में एब्सॉर्ब करा लेते हैं, जैसे कि आइसोब्यूटेन जो हमने अभी देखा था। और ये जो पूरा सस्पेंशन शुरू होता है इसे हम रिएक्टर में डालते हैं, जहाँ पे ऑपरेटिंग कंडीशंस जो है, जो टेम्परेचर है वो 80 से 110 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 20 से 45 बार है, वहाँ डाल देते हैं। पॉलीमराइजेशन होता है, HDP फॉर्म होता है और सॉलिड पार्टिकल इन स्लरी, मतलब कि सॉलिड और लिक्विड दोनों ही स्टेट मौजूद हैं फाइनल में। इस स्लरी को सेटल करते हैं फ्लैश टैंक में, जिससे कि सॉल्वेंट और अनरिएक्टेड एथिलीन अलग हो जाए, मोनोमर अलग हो जाए, और बाकी का जो बचा पॉलीमर मिलता है हमें, हम उसे वॉश करते हैं, ड्राई करते हैं और साइज अनुसार पेलेटाइज करते हैं, छोटे छोटे पीसेस में काट देते हैं। पॉलीथीन की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। लाइट वेट एंड फ्लेक्सिबल, हल्के होते हैं, लचीले होते हैं। गुड केमिकल रेजिस्टेंस, केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। एक्सेलेंट इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स, कंडक्टिविटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी नहीं है इसलिए वो इंसुलेटर है। वाटर प्रूफ है, कुछ नहीं होता है पानी में, मॉइस्चर रेजिस्टेंट है। सॉफ्ट एंड विक्सी लेदर, स्पेशली अगर LDP है तो वो काफ़ी सॉफ्ट भी होता है, चिकना भी होता है। टफ होते हैं, इम्पैक्ट रेजिस्टेंट होते हैं HDPE अगर है तो। ट्रांसल्यूसेंट से लेके ओपेक तक किसी भी कलर में मिल सकते हैं, यानी कि पारदर्शिता से लेके उसकी पारदर्शिता एक काफ़ी रेंज में मिल जाती है। नॉन टॉक्सिक है और जहरीले नहीं है, फूड शेफ है, खाना वगैरह हम स्टोर कर सकते हैं। लो मेल्टिंग पॉइंट है, 100 से 135 डिग्रीज तक
हीट चलता है, उसके आगे चलता नहीं, मेल्ट हो जाते हैं, डिग्रेड होने लगते हैं। आसानी से प्रोसेस किया जा सकता है, एक्सट्रूजन, मोल्डिंग या फिल्म ब्लोइंग यूज कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू यूजेस। उपयोग की तरफ चलते हैं। पैकेजिंग में इट इज यूज इन पैकेजिंग फॉर बॉटल्स, फिल्म्स, बैग्स। ओके। हाउस होल्ड घर के गृहस्थी की वस्तुओं में बकेट्स, बाउल्स, टॉयज, बाल्टी है, कटोरा है, खिलौने हैं, स्टेशनरी का सामान है। एग्रीकल्चरल फिल्म्स एंड ग्रीन हाउस कवर्स, उसमें प्लास्टिक यूज होता है अगर ग्रीन हाउस बनाना है या आर्टिफिशियल गार्ड एग्रीकल्चर कुछ सेटअप करना है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन वायर्स या केबल्स बनाने के लिए। वाटर एंड गैस पाइप्स में पॉलीथीन यूज हो सकता है। मेडिकल एप्लीकेशन, ट्यूब्स बनाने मेडिकल के, या प्रोस्थेटिक्स यानी आर्टिफिशियल लिम्स बनाने हैं, हाथ पाँव बनाने हैं आर्टिफिशियल, उसमें भी पॉलीथीन का यूज होता है। और कंटेनर्स, किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, चाहे फूड है चाहे केमिकल है, तो पॉलीथीन का वेसल बनता है। थैंक यू अगेन। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग लेक्चर नोटिफिकेशंस. You can post your queries as comment below. Please do not post any other queries apart from this lecture. इस लेक्चर से रिलेटेड कुछ भी प्रश्न है आप नीचे कमेंट में लिखें। लेक्चर के अलावा किसी भी प्रकार की क्वेरी यहाँ पर पोस्ट ना करें। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।